السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو عربک کورس کا ویڈیو نمبر 4 ہے۔ 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان کے اندر 2 اسم اشارہ کو بیان کیا گیا تھا، ھذا اور ذالک۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر 2 اور اسم اشارہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ گویا ٹوٹلی 4 اسماء اشارہ ہوں گے۔ ان میں سے 2 اسم اشارہ قریب اور دوسرے 2 اسم اشارہ بعید۔ میں ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے مثال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ھذا قلم، یہ پین ہے۔ تو یہ ھذا جو ہے، اس ھذا کو کہا جائے گا اسم اشارہ قریب واحد مذکر۔ اب یہ 3 مثالیں لیجئے۔ ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہیں۔ ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ ھذہ حدیقۃ، یہ باغ ہیں۔ تو ان تینوں مثالوں میں ھذہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اسم اشارہ قریب واحد مؤنث کہا جائے گا۔ اور 3 مثالیں دیکھیے۔ ذالک بیت، وہ گھر ہیں۔ ذالک کرسی، وہ کرسی ہیں۔ ذالک قلم، وہ پین ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ذالک استعمال ہوا ہے تینوں میں۔ یہ اسم اشارہ بعید واحد مذکر ہے، اس کا معنی وہ۔ اور 3 مثالیں لیجئے۔ تلک حقیبۃ، وہ بیگ ہیں۔ تلک مدرسۃ، وہ مدرسہ ہے۔ تلک حدیقۃ، وہ باغ ہیں۔ تو یہ اسم اشارہ بعید واحد مؤنث۔ گویا 3 پہلے جو مثالیں دی تھی اوپر کی، جو 3 مثالیں ہیں، یہ 3 مثالیں جو اس میں اسم اشارہ ھذا لگا ہے، یہ اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہیں۔ اور یہ 3 مثالوں میں اسم اشارہ ھذہ ہے، یہ واحد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ 3۔ اور یہ 3 مثالیں، یہ اسم اشارہ بعید واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ 3 مثالوں میں تلک، یہ اسم اشارہ بعید واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح ٹوٹلی 4 اسماء اشارہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک۔ ھذا اور ھذہ کا معنی یہ، اور ذالک اور تلک کا معنی وہ۔ ھذا کو کہیں گے اسم اشارہ قریب واحد مذکر، ھذہ کو کہیں گے اسم اشارہ قریب واحد مؤنث، ذالک کو کہیں گے اسم اشارہ بعید واحد مذکر، اور تلک کو کہیں گے اسم اشارہ بعید واحد مؤنث۔ اس طرح یہ 4 اسماء اشارہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب کچھ مثالیں دیکھیے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ قلم ہے، مذکر ہے، اس لیے ھذا یہاں پر لایا گیا۔ ھذا قلم، یہ پین ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ اب یہ جو ہے حقیبۃ، یہ بیگ ہیں اور یہ مؤنث ہے، اس لیے سوال کرنے کے لیے یہاں پر ھذہ استعمال، سوال کے ساتھ یہ ھذہ کا جملہ استعمال ہوا۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہیں۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ حدیقۃ، یہ باغ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے سوال حل سے کیا جا رہا ہے۔ ھل ھذا بیت، کیا یہ گھر ہیں؟
तो देखिए ये घर है, इसलिए जवाब क्या आया, नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। हल हादा कुर्सीयुन, क्या ये कुर्सी है, तो देखिए ये कुर्सी है, इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा नाम हादा कुर्सीयुन, हाँ ये कुर्सी है। हल हादा कलमुन, क्या ये पेन है, तो ये पेन ही है, जवाब आया नाम हादा कलमुन, हाँ ये पेन है। अब ये मुअन्नस की मिसाल है। हल हादी हकीबतुन, क्या ये बैग है, नाम हादिही हकीबतुन, हाँ ये बैग है। हल हादिही मदरसतुन, क्या ये मदरसा है, नाम हादिही मदरसतुन, हाँ ये मदरसा है। हल हादिही हदीक़तुन, क्या ये बाग है, नाम हादी हदीक़तुन, हाँ ये बाग है। अब देखिए ऊपर जो मिसाल दी थी वही मिसाल यहाँ पर भी है, लेकिन ऊपर जो जवाब दिया गया था वो नाम से दिया गया था, अब यहाँ पर ला से जवाब दिया जा रहा है। हल हादा कलमुन, क्या ये पेन है, तब यहाँ पर देखिए ये पेन नहीं है, ये घर है, इसलिए जवाब आया ला हादा बैतुन, नहीं ये घर है। हल हादा बैतुन, क्या ये घर है, तो देखिए यहाँ पर ये घर नहीं है, ये कुर्सी है, इसलिए जवाब क्या आया, ला हादा कुर्सीयुन, नहीं ये कुर्सी है। हल हादा कुर्सीयुन, क्या ये कुर्सी है, तो यहाँ पर देखिए कुर्सी नहीं है, पेन है, इसलिए जवाब आया ला हादा कलमुन, नहीं ये पेन है। हल हादिही मदरसतुन, क्या ये मदरसा है, तो यहाँ पर देखिए मदरसा नहीं है, ये बैग है, जवाब आएगा ला हादी हकीबतुन, नहीं ये बैग है। हल हादी हदीक़तुन, क्या ये बाग है, तो ये बाग नहीं है, इसलिए जवाब आएगा ला हादिही मदरसतुन, नहीं ये मदरसा है। हल हादी हकीबतुन, क्या ये बैग है, तो ये बैग नहीं है, बाग है, इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा ला हादी हदीक़तुन, नहीं ये बाग हैं। अब इस पेज के अंदर देखिए ये हाजा आएगा कि हाजी आएगा, ये मश्क के लिए है कि ये कलमुन है, इस कलमुन के साथ हाजा आएगा कि हाजी आएगा। तमाम मिसालों में याद रहे मुअन्नस जो होता है उसके पीछे ता लगी रहती है, जैसे यहाँ पर ये वरक़तुन ये ता है, हकीबतुन आखिर में ता है, तो पीछे अगर ता हो तो ऐसी सूरत के अंदर वो मुअन्नस होता है, लेकिन हर जगह नहीं, उमूमन जहाँ पर ता लगी होती है वो मुअन्नस शुमार होता है। और ख़ास तौर पर इसमें सिफत के अंदर इंशाअल्लाह आगे आप पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ। इसमें सिफत के साथ अगर आप ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाता है, जैसे सालिहुन का मना नेक आदमी, उसके साथ आपने ता लगा दिया तो सालिहतुन। तवीलुन लंबा, उसके साथ ता लगा दी तवीलतुन तो उसका मना लंबी। तो ता लगी हो तो समझ लेना चाहिए कि वो मुअन्नस हैं। तब यहाँ पर ये हाजा मुज़क्कर है और ये हाजी मुअन्नस हैं, तो कलमुन के साथ हाजा आएगा कि हाजी आएगा। तो देखिए कलमुन मुज़क्कर है इसलिए उसके साथ हाजा लगाएंगे, हाजा कलमुन ये पेन है। अब यहाँ पर देखिए वरक़तुन मुअन्नस है तो यहाँ पर हाजा नहीं आएगा बल्कि हाजी आएगा, हादिही वरक़तुन ये वरक़ है। यहाँ पर ये मुअन्नस है तो यहाँ आएगा हादिही हकीबतुन ये बैग हैं। यहाँ पर भी मिस्तरतुन मुअन्नस है तो हादी आएगा हादिही मिस्तरतुन ये पैमाना है, फुट पट्टी भी कह सकते हैं। यहाँ कलम तलवीन यानी रंगीन कलम, तो यहाँ पर आएगा मुज़क्कर हाजा, हादा कलम तलवीन ये रंगीन कलम है। यहाँ पर मिमहातुन का मना रबर ये मुअन्नस है तो यहाँ पर आएगा हाजी, हाजी मिमहातुन ये रबर हैं। यहाँ पर ये मिबरातुन है कलम तराश, मिबरातुन कलम तराश, तो हादी मुअन्नस है तो हादी आएगा, हादी ही मिबरातुन ये कलम तराश है। कलम रसासिन मुज़क्कर है
पेंसिल को कहते हैं, तो यहाँ पर हाजा आएगा। हाजा कलम रसासिन, ये पेंसिल है। यहाँ किताबुन मुज़क्कर है तो हाजा आएगा। हाजा किताबुन, ये किताब है। या दफ्तरुन कापी, ये भी मुज़क्कर है, यहाँ पर हाजा आएगा। हाजा दफ्तरुन, ये कापी हैं। अब यहाँ पर सही कौन है, गलत कौन है? यहाँ दो दो जुमले दिए हुए हैं, हादा दूलाबुन और हादिही दूलाबुन, ये अलमारी है। तो इनमें सही कौन है? ये ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? सही के सामने सही का टिक लगाइए और गलत के सामने गलत का टिक लगाइए। तो देखिए यहाँ पर ये दूलाबुन मुज़क्कर है, इसलिए हाजा दूलाबुन, ये ऊपर वाला जुमला ये सही है, और ये हादी दूलाबुन गलत है। हादा दूलाबुन, ये अलमारी है। अब यहाँ पर देखिए हादा मिमसाहतुन और हादी मिमसाहतुन। मिमसाहतुन कहते हैं ये पूछने का जो आला होता है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, जिनसे पूछा जाता है ब्लैक बोर्ड वगैरह, तो उसको कहा जाता है मिमसाहतुन। तो ये सही है कि ये सही है? तो यहाँ पर देखिए मिमसाहतुन मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पर ये हाजी ही नीचे वाला सही है, यहाँ पर सही का टिक लगाएंगे और ऊपर गलत। इसी तरह हादा बाबुन, ये दरवाज़ा है, और हादी बाबुन, तो यहाँ पर ये सही हैं और ये गलत हैं। ऐसे ही हादा नाफिज़तुन और हादी नाफिज़तुन, ये खिड़की है, तो ये नीचे वाला सही है और ये ऊपर वाला गलत है, क्योंकि नाफिज़तुन मुअन्नस है तो उसके साथ हाजा गलत है, ये हाजी आना चाहिए। हादा कुर्सियन और हादी कुर्सियन, इनमें ऊपर वाला सही है, ये कुर्सी है। हादा सल्लतुन हादी सल्लतुन, इसमें ये नीचे वाला सही है, ये टोकरी है। सल्लतुन कहते हैं टोकरी को। हादा सब्बूरतुन और हादी सब्बूरतुन, इसमें ये हादी सब्बूरतुन सही है, ये ब्लैक बोर्ड है। हादा मकतबुन और हादी मकतबुन, इसमें ऊपर वाला सही है, हादा मकतबुन, ये मेज़ है। तो ये जहाँ पर ये सही का टिक है वो सही है, और जहाँ पर यह गलत का टिक है वो गलत है। बस शुरू में जो पेज आपके सामने पेश किए गए ये यही है। यहाँ पर देखिए ये घर है, ये कुर्सी है, ये पेन है, ये बैग वगैरह, इन चीज़ों की तरफ इशारा करके पूछा गया है, क्या ये घर है, क्या ये कुर्सी है? तो हर एक के जवाब में आया नाम 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 आया, और उसके बाद ये जो घर जो जिसके बारे में सवाल किया उसको नाम के बाद इसमें इशारा लगाकर उसी का यहाँ पर तलफ़ुज़ किया गया। और यहाँ इधर देखिए, यहाँ पर जो है यही तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, यही तस्वीरें हैं जैसी है वैसी, उसकी तरफ इशारा करके पूछा गया है। लेकिन वहाँ पर ये घर है, तो ये क्या ये घर है ऐसा नहीं, बल्कि दूसरे लफ्ज़ से बदल कर पूछा गया है कि क्या ये कलम है? तो जाहिर सी बात ये कलम नहीं है, तो जवाब क्या आएगा? ला। यहाँ पर तो उसी चीज़ को लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्या ये घर है, क्या ये कुर्सी है। लेकिन यहाँ पर ये घर है तो ये नहीं पूछा गया क्या कि ये घर है, बल्कि कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्या ये कलम है, तो जवाब आएगा ला। तो इधर नाम नाम के ज़रिए जवाब दिया गया और इधर ला के ज़रिए जवाब दिया गया है। और इस लाइन में तो हल्का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है नाम ला से जवाब नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछा गया कि ये क्या है, तो जो है वो उसका जवाब दिया हाजा बैतुन, ये घर हैं। खैर, तो अब तक आपके सामने 4 वीडियो के अंदर अस्मा इशारा 4 आ गई, अस्मा इशारा 4 आ गए वाहिद के। आगे चलकर तस्निया और जमा के अस्मा इशारा पेश किए जाएंगे। बस अभी इन 4 असबाब के अंदर ये अस्मा इशारा 4 याद रखिए, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये गुजारिश की जाती है कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड की जाने वाली वीडियो को शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल बटन भी ज़रूर दबाइए,
تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔